السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں انمول ٹی وی۔ ناظرین محترم، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے دنیا میں نمک کی سب سے بڑی کان کھیوڑا کے بارے میں۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں آپ کو کھیوڑا کان کی تاریخ اور کھیوڑا کان سے نمک کیسے نکالا جاتا ہے اس کے بارے میں معلومات فراہم کروں گا۔ ناظرین محترم، پاکستان میں نمک کے ذخائر دنیا کے سب سے بڑے نمکین ذخائر ہیں، اور یہاں پہاڑوں کے اندر نمک کے اتنے بڑے ذخائر موجود ہیں اور میں نمک کی اتنی بڑی مقدار موجود ہے کہ تاحال نمک کی مقدار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ تاہم نمک کی مقدار اور وسیع رقبے پر پھیلاؤ کو دیکھ کر عالمی سطح پر انہیں دنیا کے سب سے بڑے ذخائر تسلیم کیا گیا ہے، اور نمک کے ان پہاڑوں کو کوہستان نمک یا سالٹ رینج کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، پاکستان کے بعد پولینڈ میں نمک کے ذخائر کو دوسرے نمبر پر شمار کیا گیا ہے۔ کوہستان نمک جہلم کے قریب سے شروع ہو کر کالا باغ، میاں والی اور کوہاٹ تک پھیلا ہوا ہے، اور اس وقت کوہستان نمک میں 6-7 مقامات پر سے نکالا جا رہا ہے، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ مشہور مقام کھیوڑا ہے، جہاں سے نمک کی سب سے زیادہ مقدار نکالی جا رہی ہے۔ بلکہ پاکستان میں جتنا بھی نمک دیگر کانوں سے نکالا جاتا ہے، مجموعی طور پر اتنی مقدار میں نمک صرف کھیوڑا کے کانوں سے نکالا جاتا ہے۔ کھیوڑا پنڈ داداہاں کے قریب ایک چھوٹا سا خوبصورت شہر ہے، اور اس کے شمال میں کوہستان نمک کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ جنوب میں پنجاب کا میدانی علاقہ ہے۔ شہر کی آبادی زیادہ تر نمک کے کاروبار یا کان کونی سے وابستہ ہے۔ اسلام آباد سے کھیوڑا کا فاصلہ 130 کلومیٹر ہے، اور اس سفر میں قریباً 3.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ اگر لاہور کی طرف سے آئیں تو کھاریاں اور رسول سے ہوتے ہوئے کھیوڑا پہنچ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، انسان نے سب سے پہلے نمک کیسے دریافت کیا اور کیسے اس کا استعمال سیکھا، اس بارے میں تاریخ خاموش ہے، لیکن ماہرین ارضیات نے نمک کے متعلق اب تک جو تحقیق کی ہے اس کے مطابق یہ علاقہ جہاں آج کل نمک کے پہاڑ واقع ہیں، آج سے کروڑوں سال پہلے سمندر کی تہہ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سمندر کی اس نمکین پانی کے ذخیرے پانی کی رساؤ اور بہارات کے عمل کے نتیجے میں تبدیل ہو جانے کے اس عمل کے نتیجے میں یہ چٹانیں مارز وجود میں آ گئیں۔ آج سے کروڑوں سال پہلے سمندر کی تہہ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سمندر کی اس نمکین پانی کے ذخیرے پانی کے رساؤ اور بہارات کے عمل کے نتیجے میں تبدیل ہو جانے کے اس عمل کے نتیجے میں یہ چٹانیں مارز وجود میں آ گئی۔ بعد میں سمندر کا وجود تو ختم ہو گیا، لیکن نمک کا یہ ذخیرہ پہاڑوں کے اندر اور زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں محفوظ ہو گیا۔ تحقیقات کی روح سے نمک کی یہ پہاڑ 3.5 ارب سے 5 ارب سال تک پرانے ہیں۔ نمک کے ان ذخائر کا تعلق پری کیمبرین دور سے ہے، جو زمین کا قدیم ترین دور ہے۔ بہرحال نمک کے استعمال کے بارے میں کئی کہانیاں اور روایتیں مشہور ہیں، تاہم ایک روایت جس میں بڑی حد تک اتفاق پایا جاتا ہے کہ سکندر اعظم 322 قبل مسیح میں کوہستان نمک کے مشہور درے نندنا سے گزر کر یہاں کھیوڑا پہنچا تھا۔ اس نے راجہ پورس سے لڑنے کے لیے کھیوڑا میں ہی پڑاؤ ڈال دیا اور کھیوڑا کے پہاڑوں پر اپنی فوجیں چھپا دی، جبکہ راجہ پورس کی فوجیں پنڈ داداہاں میں مقابلے کی تیاریوں میں مشغول تھی۔ سکندر اعظم کا گھوڑا اور کچھ دیگر مویشی بیمار پڑ گئے تھے اور انہیں غار کی دیواروں کو چاٹنا شروع کیا تو ان کے معدے ٹھیک ہو گئے۔ تب سکندر اور اس کی فوجیوں کو کچھ خرید ہوئی اور انہوں نے بھی دیواروں کو چک کر دیکھا تو انکشاف ہوا کہ یہ نمک ہے۔ 11ویں صدی میں محمود غزنوی نے ہندو کو شکست دے کر چنجوہ خاندان کو حکمران بنا دیا، اور مغلیہ دور میں نمک کی یہ کانیں شاہی حکومت کی تحویل میں آ گئی۔ شہنشاہ اکبر کے دور میں لکھی جانے والی تاریخ کی اہم کتاب آئین اکبری میں یہاں سے حاصل ہونے والے نمک کو بیرون ملک برآمد کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔ پنجاب میں سکھ دور حکومت میں نمک برآمد کرنے کے لیے کثیر منافع حاصل کرتی رہی۔ کھیوڑا میں سائنسی بنیادوں پر نمک کی کان کنی کا آغاز انگریزی دور حکومت میں 1849 میں شروع ہوا، اور 1872 میں کان کے اندر سے نمک باہر لانے کے لیے کم گیج کی ریلوے لائن بچھائی گئی، اور نمک سے بھرے ہوئے ڈبوں کے آگے گھوڑے جتے ہوئے ہوتے تھے۔ 1925 میں بجلی سے چلنے والے انجن سے نمک کے کنٹینر باہر لائے جانے لگے۔ اس طرح نمک کو کان سے باہر لانا قدرے آسان ہو گیا۔ پہلے کھدائی خود ساختہ دستی اوزاروں سے کی جاتی تھی، اب بجلی کی مشینوں کے ذریعے کھدائی اور کٹائی کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس دور میں نمک کی کانوں کا ہیڈ کوارٹر دلی میں تھا، اور وہاں سے انگریز افسر آ کر دورے کیا کرتے تھے۔ اس کان کے اندر جانے کے لیے ایک مرکزی دروازہ ہے جو پہاڑ کی بلندی کے مقابلے میں چھوٹا لگتا ہے،
और दरवाजे को देखकर कतई अंदाजा नहीं होता कि ये एक वसी और इस दुनिया का दरवाजा है जो मुकम्मल तौर पर नमक से बनी हुई है। इन कानों में काम करने वाले लोग नस्ल दर नस्ल इन कानों में काम करते चले आ रहे हैं। कान के अंदर मुकम्मल अंधेरा होता है और बिजली के बल्ब यहाँ अंदर की दुनिया को मुनव्वर करते हैं। कान के मरकजी दरवाजों के दोनों तरफ सख्त पत्थर जैसी दीवार है और ये दरअसल जिप्सम पत्थर है जो मरकजी दरवाजे के अंदर 2500 फुट तक चली जाती है। नाज़रीन, जिस मकाम से नमक के ज़हायर का सिलसिला शुरू होता है वहाँ एक चौक की मानद कुशादा जगह है जहाँ से मुख्तलिफ रास्ते निकलते हैं। इस चौक के मगरबी किनारे पर एक छोटी सी मस्जिद बनी है जिसका फर्श और दीवारें भी नमक ही कील बलाकू से बनाई गई हैं। नाज़रीन, ख्योड़ा से जो नमक बरामद होता है इसकी तमाम इकसाम के पत्थर जो नमक की शक्ल में है इनको यकसा तराश कर बलाक बनाए गए हैं। ये नमक ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ है और खूबसूरती पैदा करने के लिए इन बलाकों को अंदर से खोखला करके इनके अंदर बल्ब लगा दिए गए हैं और जब ये बल्ब रोशन होता है तो इन शफाफ ईंटों से अनगिनत शैडो के रंग झिलमिलाने लगते हैं और रंगों की रोशनियां फूट कर अजब बहार दिखाई देती हैं। नाजरीन, ये मस्जिद सिर्फ 25 साल पहले तमीर की गई। नाजरीन, मस्जिद से थोड़ा आगे चलकर एक ऐसा मकाम आता है जहां हर वक्त पानी रसता रहता है। ये पानी पहाड़ों से आता और मुसलसल रसता रहता है और थोड़ी थोड़ी देर बाद कतरों की शक्ल में टपकने लगता है और इसके सामने का हिस्सा खुश्क है। नाजरीन, ये मंजर भी देखने वाला है और लगता है जैसे किसी माहिर संग तराश ने संगे मरमर को कतार दर कतार तराश कर मोतियों के ढेर की शक्ल दे दी हो। बाज जगहों से टपकता हुआ पानी इस हालत में जम जाता है और छत से लड़ियों की सूरत में लटकता हुआ नजर आता है। इस जगह को अशक नमक कहा जाता है। इस कान के अंदर मुख्तलिफ रंगों और शैडो वाला नमक है। कहीं ये नमक साफ और शफाफ है और कहीं सफेद और कहीं मटियाला और कहीं ये नमक सुरही माइल है। दाम खाने और मेयार के लिहाज से सुरही माइल नमक को सर फरिश्त समझा जाता है। नाज़रीन, ख्योड़ा की नमक के कानों से रोजाना करीबन 20,000 मन नमक निकाला जाता है और 3 शिफ्टों में करीबन 2,500 मजदूर काम करते हैं। लेकिन यह बात आपके लिए शायद हैरत का बायस हो कि इन मजदूरों को यह नमक इस्तेमाल करने या घर ले जाने की जरूरत नहीं और उन्हें आम लोगों की तरह नमक बाजार से ही खरीदना पड़ता है। ये कानून दरअसल अंग्रेजों ने बनाया था जो आज तक राइज है। बात नमक की कानों की हो रही है तो कानों में हर वक्त खदाई होती रहती है और कुछ अर्सा पहले इन सुरंगों की पैमाइश की गई जो 90 मील के करीब थी। इन कानों के अंदर कान के सबसे बड़े कमरे को असेंबली हॉल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 350 फुट है और यहाँ से 500 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर इस कमरे की छत पर चढ़कर कान से बाहर जाया जा सकता है। ताहम ये तवील और खतरनाक जीना है और सीढ़ियों की रैकिंग न होने और अंधेरा होने के बायस ये सीढ़ियां चढ़ने वाला किसी भी लम्हे गिर सकता है। असेंबली हॉल के साथ थोड़ा आगे एक पतला रास्ता आता है जिसके दोनों तरफ लकड़ी का हफासी जंगला बनाया गया है और यहाँ बड़े बड़े तालाब हैं और इन हिस्सों में अंधेरा भी गहरा होता है। पानी के ये तालाब काफी गहरे होते हैं, ताहम पानी नमकीन होने के सबब यहाँ कोई डूबता नहीं और कहते हैं यहाँ चिल्लू बार पानी लेकर डूब मर जाने वाला मुहावरा फेल हो जाता है। ताहम अगर कोई आदमी गिर जाए तो मजदूर रस्सा फेंक देते हैं जिससे डूबता हुआ आदमी जो दरअसल तैर रहा होता है पकड़ लेता है तो मजदूर उसे खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। नाज़रीन, ख्योड़ा की कानों से हासिल होने वाले नमक का 60% हिस्सा सनती मकासद में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में ख्योड़ा के इस नमक को बड़ा मुतबरिक समझा जाता है और ख्योड़ा के करीब कटास के मंदिर में आने वाले ज़ाहिरीन खास तौर पर ख्योड़ा का नमक तबर्रुक के तौर पर अपने साथ जरूर ले जाते हैं। इन कानों में मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, मसलन शीश महल, बानो बाजार, बाटी गेट, पुलसरात वगैरह, और ये नाम इन हिस्सों को किसी न किसी खसूसियत की बिना पर दिए गए हैं। मसलन शीश महल उस इलाके को कहा जाता है जहां नमक की छत और दीवार पर रोशनी पड़ती है तो नमक के नन्हे नन्हे ज़रात शीशे की तरह रोशनी को मुनक्कस कर देते हैं। जबकि पुलसरात का नाम इस जगह को दिया गया है जो कान के 2 ऐसे हिस्सों को मिलाता है जहां नीचे गहरी झील है। नमक की कान देखने वाले लोग दूर दूर से आते हैं। मुंतज़मीन ने जब देखा कि लोगों की तादाद रोज बरोज बढ़ रही है तो उन्होंने टिकट लगाकर आमदन हासिल करने का फैसला किया और टिकट हासिल करके इन सुरंगों की सैर करना मुमकिन है।
रोजाना करीबन 500-600 अफराद टिकट लेकर इन जगहों की सैर को आते हैं। इन लोगों में गैर मुल्की भी शामिल होते हैं। कान के अंदर मुख्तलिफ क़रीबात का भी इस्तेमाल किया गया है। कभी गाने की महफिल होती है और कभी मुशायरा होता है। और सच तो यह है कि ख्योड़ा की नमक की कानों में सियाहों के लिए बड़ी पुरकोशिश है और हुकूमत इसे मजीद तरक्की देकर इस इलाके की सियाहत को फरोग दे सकती है। नाज़रीन, नमक कैसे निकाला जाता है? कान से नमक निकालना एक फन है और प्लानिंग ना की जाए तो कान बैठ सकती है, जिससे मुतअद्दिद जानों का नुकसान हो सकता है। इससे महफूज रहने के लिए ये तरीका अपनाया गया है कि 40-50 फुट के रकबे से नमक निकाल कर करीबन इतनी ही जगह खाली रखी जाती है जो एक पिलर या सतून की शक्ल में ऊपर के बार पहाड़ को सिरकने और गिरने से महफूज रखता है। और इस पिलर से न सिर्फ छत बल्कि दीवारों को भी सहारा मिलता है। इसके अलावा कान में हवा की आमदरफ्त के लिए रुशतान भी बनाए जाते हैं। बाज कानें इतनी गहरी खोदी गई हैं कि जमीन से पानी निकल आया है, जिसकी वजह से मुतहद झीलें बन गई हैं। कान कोनों को जमीन की सतह से लेकर 275 फुट तक ज़ेरे जमीन जाकर भी गहराई करना पड़ती है और आमदरफ्त के लिए नमक को ही काट कर सीढ़ियां बनाई गई हैं। नाज़रीन, सुरंग में नमक कैसे तोड़ते हैं? नमक की कानों में हथौड़े, कदाल या कुल्हाड़ियों से नमक नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि नमक इंतहाई सख्त किस्म का पत्थर होता है। इसलिए नमक तोड़ने के लिए बारूद का सहारा लिया जाता है और छत के जिस हिस्से को तोड़ना मकसूद हो, इस हिस्से को बर्मे की शक्ल के बने एक खास आले से बर्मे की शक्ल का होता है का निकन सुराख करते हैं। सुराख कम से कम 4 फुट गहराई तक किया जाता है और 3-4 घंटे सर्फ होते हैं। सुराख मुकम्मल होने के बाद माहिरीन सुराख में बारूद भरते हैं और बारूद भरने के बाद सिक्योरिटी का अमला मुस्तैद हो जाता है और सब लोगों को खबरदार कर देते, जिससे सबका निकन इस जगह से दूर हट जाता है जिस जगह धमाका कर दिया जाता है। इसके नतीजे में नमक के बड़े बड़े पत्थर को तोदू की शक्ल में छत से टूटकर गिर जाते हैं। जब ये इत्मीनान हो जाता है कि अब कोई मजीद तोदा नहीं गिरेगा, 3 टुकड़ों को छकड़ों पर लाद कर मजदूर धकेलते हुए बाहर ले जाते हैं।